Hello, students. Today I am explaining the some of the series object methods, or we can say attributes, um, which will be very helpful in programming point of view and uh, different prospects. We can use it. So, first method is series dot index. It will be written index of the series. Whatever number of index is there, it will be written. Series dot value return n array. N array means number of values are there. D type data type, return data type of the object of underline. Return shape, tuple of the shape of underline. Return bytes, return the number of bytes underlying data. Return dimension, return element, return size of the data type. Return true if there are any NaN stands for not a number, and series dot empty returns series dot empty. So I'll create it program. Let us see a program form. This is a simple program. Import pandas PD series 1 2 3 4. Here tuple we have used it. Here range 1 to 6 use it, and here we have to use it all the programs. So instead of this thing, I am creating the same thing in a program in a single way. First, I'll create a series, import series, and print S1, then index. Now see it the index. One by one, I'll explain it. Here. One, two, three, four, A, B, C, D. So here index will be A, B, C, D. And D type will be object. This is the main important thing. D type is the object. Now next thing. Next, I'm using it value. So value will be return value of them. Here is value 1 2 3 4. Value will be 1 2 3 4. Here value will be 1. Now the thing is values. The important thing is values. Now third one. Shape 4. Actually, it represents tuple. So only list is there, only one dimension is there. Otherwise, if we have taken tuple, then it will show it tuple. If I'll select it in case of tuple, like s1.empty. S1 series, and I'll use it. Simple bracket 3 4. Again, S1 dot shape. Two values, 2 comma whatever. Will give error. Tuple object is not called, so it will give error. Only tuple. This will 4 values. So 4 values are there.
4 comma. Now shape, we return the shape of the tuple. So we can use it in series also, only series. Now next is size. Size 4. 1, 2, 3, 4. 4 values are there. So 4 size is there. Suppose I will print it 5 and values 1, 2, 3, 4, 5, size will be 5. So whatever values are there, it is size. Size means how many values are there. Next, number of bytes, n bytes. Number of bytes 40. By default, it will take it 8 byte. By default, it will take it 8 byte. So I'll explain one by one. Index, values, shape, size, and bytes. By default, one value one value consume 8 byte. So it will 5 values are there. So it will, that is 8 into 540. 40. Now next is I'll explain all this. Endim and d type. Endim, it will return the dimension. D type, it will return the data type. Has an ends, it will return true if has none value. And series empty, it will return empty. Now see one by one. Index, one by one. It will print it 1, 2, 3, 4, 5. I'll explain it. This series 1, 2, 3, 4, 5. This index, these values, this shape, this size 5, number of bytes 40, 1, 8 consume, number of dimension 1, because it is 1 dimensions are there, not 2 dimension. And series is already, you know it, series is 1 dimension array. D and dim is 1. D type, data type is integer 64. Has a none. That means, is there any name value? Name value means not a number value. If it is there, then it will true, otherwise false. ये false होती है अगर वो has a name value का मतलब है एक name value होती है ना, तो वो false बताता, otherwise वो true बताता. और last है empty, it will return empty false. False इसलिए है कि वो values हैं, अगर empty होती तो वो true बताता. So I hope this concept should be clear. And I hope your concept is totally clear. I'll clear it as an N also. NaN. It will return true. Has an N will return true. Has an N return true. Yes. Object dot shape return will true.
Nen. I'll create one another program so that you will understand nen, np.nen. Yes, nen basically it will take it uh, port numpy as np and np.nen. So this will return true, np non because these two things are very important. Always use numpy as np. That is very important thing because nen is defined, not a number is defined in numpy package, and numpy we are using, and always using first and third letter is capital. That's why error got it. तो ये एरर आने से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्या है. अब एक एम्प्टी सीरीज भी अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ. अगेन आई क्लियर इट. एम्प्टी सीरीज भी सपोज ये है, इसको मैं एम्प्टी सीरीज ले लेता हूँ. दैट विल ट्रू. अब ट्रू आ जाएगी वो. नहीं नहीं, ट्रू नहीं आएगी. एक मिनट एक मिनट एक मिनट. एज एन चेक सीरीज एम्प्टी. फॉल्स है वो, ट्रू नहीं आएगी वो. ये हमने S1 ली ना, तो S1 ये ट्रू. ये ट्रू हमें. तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इट. डी टाइप जैसे जो भी डेटा टाइप, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, अभी यहाँ पे इंटीजर है, अगर फ्लोट लेंगे तो फ्लोट का आ जाएगा डेटा टाइप. जैसे आपको अपन 1.2, 2.3, 3.4, 4.5, 5.66. अभी अपन इसका लेंगे तो जो डेटा टाइप आएगा ना, यहाँ दिस डेटा टाइप विल शो 6. ये रहा फ्लोट 6. इसमें वार्निंग आती है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो जो है वो अब ऑब्जेक्ट, एम्प्टी सीरीज जो है वो ऑब्जेक्ट है. तो इसलिए डी टाइप अगर आप डिफाइन करें तो तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. आप क्लियर हो गया होगा. मैंने एक प्रोग्राम इसमें लेके काम करा है. अब अपन और भी दूसरी चीजें हैं. टोटल ऑब्जेक्ट को प्लस वगैरह करना, ये तो हम कर चुके हैं. अर्थमेटिक ऑपरेशन कर चुके हैं. कंडीशनल थिंग मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है ना. कंडीशनल थिंग मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था. तो देखो, इंपोर्ट पीडी प्रोग्राम फॉर सीरीज ऑब्जेक्ट कंडीशनल एंड सॉर्टिंग, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें. सॉर्ट मेथड है, इंडेक्स मेथड भी यूज कर सकते हैं हम. सॉर्ट वैल्यू और एक सॉर्ट इंडेक्स मेथड है. ये सब एक साथ ही ले लेते हैं हम, तो उसमें क्लियर हो जाएगा. और इंडेक्स भी, एवरीथिंग विल क्लियर इट. अब मैं आपको एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट इनको हाइड करते हैं. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इट दिस थिंग.
Now the thing is, हाँ तो आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब क्या है इसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। S1 ग्रेटर देन 357, 457 ग्रेटर देन 357, ये जो वैल्यू है ये कंपेयर हो रही 357 से, तो वैल्यू ट्रू है, तो ट्रू। फिर सेकंड 364 ग्रेटर देन 357, ट्रू। फिर 478 भी ग्रेटर है। फिर 132 फॉल्स, डी टाइप फॉल्स, बुलियन आ गया। डेटा टाइप बुलियन आ गया इसमें। इस केस में डेटा टाइप बुलियन आया क्योंकि ट्रू और फॉल्स आ रही है। ये ग्रेटर, ये कंडीशन है, दिट इज कॉल्ड कंडीशन, है ना। फर्स्ट वन इज कंडीशन। फिर आगे बढ़े हम। सेकंड, सेकंड में S1 के अंतर्गत ट्रू और फॉल्स बताना। मतलब इसका S1 का ट्रू। अब देखें अपन इसको रन करें, वी कैन रन इट। तो ट्रू मतलब 457, जो भी ट्रू वैल्यू आएगी S1 ट्रू तो 457। फिर सेकंड 364, 478, और फोर्थ वाली नहीं आएगी, S1 फॉल्स पे नहीं आएगी वैल्यू। मतलब अगेन इफ यू आर यूजिंग S1, S1 के साथ आप यूज कर रहे हो, तो वो ये S1 डॉट, तो इसमें क्या होगा, ट्रू वाली सारी वैल्यूज वो वैल्यूज को बताएगी, और फॉल्स वाली सारी वैल्यूज वो वैल्यूज के साथ बताएगी। मतलब वो डिस्प्ले नहीं होगी, तो फॉल्स वैल्यू विल नॉट डिस्प्ले। नेक्स्ट अब अपन कुछ और चलते हैं। दिस दिस विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स, इसको मैं बताता हूँ। दिस विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स, एंड दिस विल रिटर्न वैल्यू इफ ट्रू। सॉर्टेड वैल्यू, अब यहां पर S1 को सॉर्ट कर रहे हैं हम, है ना। तो द मेथड विल बी सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। ये वैल्यूज आ गई, सॉर्टिंग वैल्यू, वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पे भी अगर स्लेशन यूज कर लेंगे तो वी कैन यूज इट। अब सॉर्ट वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट है वो आप देख रहे हो, अगेन इट इज असेंडिंग, 132, 364, 4। अब आपको उसको डिसेंडिंग करना है, तो असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स ले लो आप। S1 sort ascending equals to false। है ना, ये डिसेंडिंग आ जाएगी, दिस विल रिटर्न डिसेंडिंग। ओके,
descending. Descending. Then next up index. तीन चीजें हैं. पहले हम सॉर्ट इंडेक्स ले लेते हैं. अब इसका मतलब क्या? सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स का मतलब है वो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग होगी. अब देखें हम. ये ए बी सी डी 456 360 एज इट इज. और बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग ही है. बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है. बाय डिफॉल्ट का मतलब है वी हैव नॉट मेंशन इट. नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपको असेंडिंग लेना है या डिसेंडिंग लेना है. अब इंडेक्स सॉर्ट इक्वल्स टू असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, तो डिसेंडिंग आ जाएगी. और असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू. ये और फास्ट लाइन एक ही बात है. दिस लाइन एंड फास्ट लाइन विल बी सेम. ये दोनों एक ही है. दिस टू थिंग्स आर सेम. सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स लिखो या असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू लिखो, द मीनिंग इज सेम. अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ऑरेंज कलर में, अगेन दिस विल ऑरेंज कलर, दैट मींस ट्रू TRUE, और फॉल्स F कैपिटल. सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स. दिस विल रन इट. मैं रन इसको कर रहा हूँ. ऊपर 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 खोल. I'll run it. ये इंडेक्स डिसेंडिंग 132. देखो ये असेंडिंग. ये इंडेक्स की असेंडिंग मतलब ABC. हम वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं. अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है तो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू. वी आर यूजिंग इंडेक्सिंग DCBA. तो आई थिंक दिस विल क्लियर. अब एक और इम्पोर्टेंट है, री इंडेक्स बता देता हूँ. दिस इज द लास्ट फंक्शन. री इंडेक्सिंग का मीनिंग क्या है? वी कैन रीअरेंज इट. हम उसको री इंडेक्स कर रहे हैं. री इंडेक्स और लिस्ट जितनी वैल्यूज है उसको रीशफल कर रहे हैं. इंडेक्सिंग, नॉट वैल्यूज, है ना. तो अगेन रन इट. ये DCAB. देखो आप, आई DCAB ये इंडेक्सिंग थी. अब री इंडेक्स के बाद DCAB ये री इंडेक्सिंग करेंगे. कैसे पता पड़ा? हाउ टू फाइंड आउट DCAB? अपन चाहे तो अलग कुछ भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं. री इंडेक्सिंग मीन्स वी कैन सेट इंडेक्सिंग एज पर अवर ओन कन्वीनियंस. तो री इंडेक्सिंग का तरीका क्या है? री इंडेक्सिंग सिंपल ब्रैकेट, लिस्ट ब्रैकेट, और लिस्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंग वो करना है. तो आई होप दिस मेथड विल क्लियर इट.
इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग मैंने सीरीज के अकॉर्डिंग आई हैव also explained it with Sumita Arora, Preeti Arora. So I hope, I think most of the object I have clear it, और कहाँ क्या करना है, उसको किस तरह से लेना है, that I have clear it. Now one thing we'll do it, we can solve it, some of the MCQs we can use it. एक ड्रॉप मेथड भी यूज होती है जिससे वो इंडेक्स रिमूव हो जाती है. ऑब्जेक्ट डॉट सी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करना है तो वो रिमूव हो जाती है. अगेन आई विल टेक इट ड्रॉप, ड्रॉप मेथड भी मैं ले लेता हूँ. S2 इक्वल्स टू S2 डॉट, या S1 ही ले लेते हैं ना. S2 इक्वल्स टू S1 equals to S1 dot drop. You print S1. So it will print, it will remove the drop method. Yeah, ABD. This will return ये drop कर दी. So it will work on drop method. I think most of the series command I have explained it. I'll try it next lecture. Either I'll solve it some of the MCQs, so that you will be very helpful for how to run it, how to do it, and if any problem persists, so we can discuss it. And again, if you have any problem regarding series or series method attribute, how to run it, how to do it, you can write it in comment box, or you can also send it on my WhatsApp number. Thank you very much.